Hi guys, my name is Rohit Ghosh and I am a qualified cost accountant. And from today, I start a new series in my channel that I thought that I covered each and every part of GST, and step by step I completed the entire topic. Okay, so there is a lots of part in the GST and I make a video for each individual part and I try to cover each and everything. Okay, and also I try to cover the amendment which coming in the GST, and today is the first class of GST in which I give an introduction of what is GST and what is the GST in India. So before I am going to start, I just told you that this book is actually free resources. It is the book of CM Mahesh Gaur sir, and you may refer any of the book which you may available. The reason behind the choosing this book is that this book is covered each topic in a chart manner. It included lots of chart and lots of tips and tricks, so that's why I think it is perfect for understanding purpose, and it also help to retain in your mind because chart is very much helpful. Okay, you may refer to any book. You may refer ICMAI book. You may refer ICWA book. But personally, I refer this book. But this is, the quality of book is very much, very good. Okay, and this is available in CM Mahesh Gaur sir website. So if anyone can need this book, they can downloading from that website. It is free of cost. Okay, and if you think that you can refer any other book, that doesn't matter. The core thing is same, because in GST is a very much bulky. So before identifying any transaction, you need to run lots of things in your mind to identifying the proper treatment of that particular transaction. That's why the reason that I choose this book. Okay, so if possible, I can give it in your link in my video description. Okay, so today I covered what is GST tax, what is GST in India, and concept of GST, and constitutional provisions, tax hierarchy, and framework of GST. So before going into that, what is GST, I just give a brief introduction that what is tax. Okay, after that we need to understanding the main two major bifurcation of tax. One is a direct tax, another is a indirect tax, and GST is an indirect tax. So first of all, we all need to know that what is tax. Tax is simply what the amount which we pay to the government, and the government later on that expand that amount on our public services or on public services. That means सपोज जब हम कुछ परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, तो द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन लेट अज्यूम 10,000 एंड द टैक्स इज 200. So the net price of mobile phone is 9,800 plus 2,000 tax. But we pay total 10,000. Total 10,000, it include 9,800 plus 200, and that amount is go to the in the hand of the seller who sell the mobile phone, and after that the amount is go to the seller is submitting the return and paying the tax to the government. So indirectly the seller is paying the tax on behalf of me to the government. So government collect the tax, and after that the government will expend that money in our public services. Public services is included making of new road, making of new bridge, making a railway station, maintenance of railway station, metro station. जो जो चीज़ हम लोग सर्विस यूज़ करते हैं जैसे कि स्ट्रीट लाइट, सब कुछ, तो वो सब जो मेंटेन करते हैं, तो द गवर्नमेंट नीड मनी. So from what source the government will actually collect that money? The major source is indirect tax, not a direct tax. Indirect tax is play a major role to giving the fund to the
गवर्नमेंट, बिकॉज जीएसटी से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, तो इसलिए गवर्नमेंट इज डिपेंडिंग मेजरली और ब्रॉडली ऑन द जीएसटी. ठीक है. So it is the taxes, and there is a two major tax. One is a direct tax, another is an indirect tax. GST, we all know that GST is an indirect tax. ठीक है. And there is a one also part that is called a direct tax, that is income tax. We all know the name as the income tax. So there is a major difference between the direct tax and indirect tax. What is the difference? The difference is that the direct tax is progressive in nature. Progressive in nature means, for example, there is a lots of slab in the direct tax. We all know that up to 3 lakhs there is a exempted, then 3 to 5, ऐसे करके बहुत सारा मतलब स्लैब है. तो क्या होता है कि द पर्सन हु अर्न मोर, हु हैव अ मोर मनी, हु इज रिच, they paid a more taxes. But the person who is poor, who don't have that much of money, they pay a less taxes. In direct taxes it is happened. But what happened in indirect taxes? In indirect taxes, the person who rich, who earn a lots of money, the person who poor, who earn a less money, they paying the taxes in a similar rate. Money, for example, I buy one phone and the same phone is buying by, for example, Shah Rukh Khan. So the tax which I paid for that phone and the tax that Shah Rukh Khan paid on that phone is same. But our both, in case of us both, the direct tax is, income tax which I paid is very much low, and the tax which Shah Rukh Khan is paid is very much high. So it is the major difference. So direct tax is progressive in nature, but indirect tax is regressive in nature. Regressive matlab there is a no slab system like direct taxes. One more difference between the direct tax and indirect tax is that in case of a direct tax is directly paid by the person who is actually need to pay the tax. That means, for example, if I need to pay the tax to the government, then I am liable to pay my tax. माने मैं अगर मान लो किसी भी टैक्स को पे करने के मेरा मतलब जो लाइबिलिटी है वो मेरे को पे करना होता है, मगर इनडायरेक्ट टैक्स में वो नहीं होता. जैसे इन माई मोबाइल फोन एग्जाम्पल, but you find that I pay the tax to the mobile seller, and the mobile seller further transfer the tax to the government. That is, it is an indirect way to pay the tax. So that's why it is called the indirect taxes. ठीक है. So it is the major difference between the indirect tax and direct taxes. Indirect GST and custom is the indirect taxes. Okay. Now, before going into the what is GST, I just give a brief that what is the reason behind coming the GST. Before GST, that is before 1st July 2017, that is the applicable date of GST, before that date, in our country we have a VAT, we have a excise duty, we have a CST. So, what is the reason to abolish that old tax regime and entering into the new tax regime? The main reason is that input tax credit is one of the main reason. What is input tax credit? That means जब हम मतलब पुराने टैक्स सिस्टम पे जब टैक्स पे करते थे तो वहाँ पर मतलब मान लो तुमने एक्साइज ड्यूटी पे किया तो वो एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स का क्रेडिट होता है ना वो वैट में नहीं मिलता था, तो मतलब वो टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था, तो उसको इनकम मतलब टैक्स में उसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं. तो to eliminate that cascading effect, matlab tax on tax, and also to making the smooth flow of an input tax credit, we are the government is introducing the GST. ठीक है. One more major reason is that the old tax regime is very much complex and lots of documentation need to be maintained in that tax regime, which is the main advantage of GST. That is, it is very much simplified and only some document is required to be maintained, but फिर भी it is less than the old tax regime. If you think that if any person is thought to
start a new business, then that person is need to be hired at two person, one who saw the excise part and another saw the VAT part. So because there is a lots of regulation in the VAT and excise and it is different. And there is a return which is submitted that is differently, मतलब एक्साइज में अलग, वैट में अलग रिटर्न दो, उसका एनुअल रिटर्न अलग सबमिट करो, फिर अगर असेसमेंट हुआ तो फिर उसके अलग झमेला, डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओ तो ये सब इतना सब झमेला के लिए जो एलिमिनेट करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाने के लिए मेजरली व्हाट गवर्नमेंट थॉट दैट वी नीड टू सिंप्लीफाई आवर टैक्स सिस्टम. So that's why they introducing the GST in 2017 1st July. But you may be here to surprise that the GST is actually introduced in 1954. First GST is introduced in 1954 in France. So there is a huge gap in between 1954 and 2017. And during this period, majorly, approximately more than 160 countries actually adopt the GST. तो we are, बहुत ज़्यादा लेट करके हम लोग स्टार्ट किए थे. तो फर्स्ट जुलाई 2017 को, तो बहुत पहले मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है तो वो तो बहुत पहले ही GST अडॉप्ट कर लिया. So don't think that the GST is an entirely new thing. It is already in place, but we are adopting on 2017. So it is one brief introduction of GST. Now, if I read the definition of GST, they say that the goods and service tax is levied on goods and services imposed at each point of sale of goods or rendering of services. क्या बता रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अच्छा, इसमें गुड्स एंड सर्विस जो दो चीज़ है ना उसका डेफिनेशन अलग से दिया हुआ है. दैट डेफिनेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द GST एक्ट. ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे क्या डेफिनेशन है. तो क्या बता रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द टैक्स दैट इज लेविड ऑन द गुड्स और रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज एट ईच पॉइंट ऑफ सेल्स. मतलब जब हम सेल करेंगे तब GST चार्ज होगा. ठीक है, मतलब इसलिए बता रहा है कि एट ईच पॉइंट ऑफ सेल्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस लास्ट में दैट इज एक्सक्लूडेड, दैट इज द फुल डेफिनेशन विल बी दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द टैक्स लेविड ऑन ए गुड्स एंड सर्विसेज imposed at each point of sales or rendering of services except on human alcoholic liquor for human consumption, and another is a immovable property. I just need to add one sentence to complete this definition, that is except alcoholic liquor for human consumption and immovable property. There is some of the exception in the immovable property which I discuss later, don't worry about that. But if I want to complete this definition, I just add, because human consumption का जो अल्कोहल होता है उसमें GST नहीं लगता. ठीक है, उसमें GST नहीं लगता, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर भी GST नहीं लगता. उसका अलग से टैक्स है, उसको हम प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं उसका. ठीक है, तो ये दोनों में टैक्स नहीं लगता. और अल्कोहल में अभी भी पुराना टैक्स सिस्टम चल रहा है. अल्कोहल में, पेट्रोल में, डीजल में, नेचुरल गैस में, वो सब है, वो अभी भी पुराना टैक्स सिस्टम में है. इट इज़ दी मतलब आउट ऑफ द परव्यू ऑफ GST अभी भी. ठीक है, तो ये GST. अच्छा, डुअल कंसेप्ट क्या होता है जो GST में इंडिया में जो चलता है, डुअल कंसेप्ट वो है कि वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो स्टेट एंड सेंट्रल का अलग अलग यहाँ पर मतलब हिस्सा है. ठीक है, मतलब स्टेट का अलग और सेंट्रल का अलग. तो ये जो दो कंट्रोल है ना एक ही लॉ के ऊपर, इसको कहते हैं डुअल कंट्रोल. तो ये डुअल कंट्रोल सिर्फ और एक स्टेट और एक कंट्री में है, वो है कनाडा.
कनाडा में अभी भी डुअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मतलब देयर इज ए सेपरेट टैक्स फॉर स्टेट, सेपरेट टैक्स फॉर सीएसटी। मतलब मान लो द टोटल टैक्स इज 18%, so out of that 18% in our India, what happened that out of 18%, 9% is goes to the central and 9% is goes to the state. It is for intrastate. What is intrastate? I will tell you later. तो ये जो डुअल मॉडल इसको बोलते हैं कि स्टेट का और सेंट्रल का अलग अलग जो पावर होता है। तो ये पावर कहाँ से मिला स्टेट को और सेंट्रल को? ये पावर मिला आर्टिकल 245 and Article 246. Here it is that the Article 245 and 246 give the power to extend and subject matter of the law by the parliament as well as state legislature. Here parliament means central, okay, and state government means the individual state. Here they tell that extent of law made by the parliament and by the legislature of state. And Article 246 tells that the subject matter of the law made by the parliament and by the legislature of state. That means the dual control power is provided by Article 245 and Article 246. It is the dual concept of GST in India. Acha, what is the concept of GST? Here, concept of GST means the main objective of GST. ठीक है, तो for sure that the drawback of old tax regime is the main objective to introduce the GST. So what is the drawback of old tax regime? Old tax regime, the main drawback is the input tax credit and cascading effect of tax, and the main objective behind GST is this two. If we notice, the first thing is that the GST is a value added tax. What is the meaning of GST is a value added tax? Means that if I draw, if we assume that there is a four person, one is A, B, one is A, another is B, another is C, and another is D. And after that, if A is transferring the goods to B, A is transferring the goods to B, B is transferring goods to C, and C is transferring goods to A, and the cost of goods is, if assume that 100 and profit is 10, that is 110, then 120, adding 10, B sell to C for 120 and C sell to D for 130. So if we assume that there is a fourth party and the GST is 10%, and for a simplification purpose, the GST rate is 10%. So here what we notice that A transferring the goods to B for rupees 110, and after that B transferring the goods to C for 120 and C transferring the goods to D 130. That is, here the D is a final consumer, and each पार्टी ने इस पे 10 रुपया का प्रॉफिट ऐड करके फिर नेक्स्ट पार्टी को सेल कर दिया. तो here the total profit in each time is 10 10 10, and if we notice that GST is charged at the each point of sale. Okay, so what you notice that here what is happened, that GST rate is 10%, then the amount of GST that is paid by B to A, B, just a minute, yeah, B to A is 110 into 10%, that is 11. So how much is the total cost of B? Is it 110 plus 11 or only 110? The cost is actually 110. क्यों? क्योंकि जो टैक्स B ने A को पे किया ना, इन एडिशन उसका B को क्रेडिट मिल जाएगा उसके अकाउंट पे. ठीक है, मतलब जो 11 का टैक्स
पे मतलब बी ने पे किया है उसको, उसका अकाउंट पे मतलब जो जीएसटी का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आ जाएगा कि तुमने 11 रुपया टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था, ठीक है। तो द टोटल कॉस्ट टू बी इज एक्चुअली 110, नॉट 121. After that, when B sell the goods to C, the price is 120. It is excluding tax, हाँ. Please remember it is excluding tax. मैं लिख देता हूँ, exclude GST, ठीक है। तो ये 120 में अगर फिर से टैक्स लगेगा क्या होता है, 12 होगा। तो दिस टैक्स इज पेड टू बी बाय सी। तो इसके मतलब जो बी को टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ द टैक्स इज 1। हाउ? क्योंकि देखो 12 का टैक्स सी ने बी को पे किया, तो बी ऑन बिहाफ ऑफ सी जस्ट पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने इट इज द मेजर characteristic of indirect taxes, the payer of tax and bearer of taxes are not the same person. So here you will notice that the C is paying the tax to the B and B is liable on behalf of C. तो B का tax liability कितना बनता है, 12 का। मगर if you are notice that B is already pay 11 to A at the time of purchasing the goods from A, ठीक है। जब वो गुड्स एक से परचेस कर रहा था बी ने, वो ऑलरेडी 11 का टैक्स उसको पे कर चुका है। तो अभी देखो, तो नेट टैक्स होता है 1 का। अब समझ में आया कैसे? देखो बी जब सी को सेल करता है तो सी को तो विथ टैक्स सेल करेगा, मतलब 120 प्लस 12 टैक्स, दैट इज टोटल 132। तो इसको तो 132 में सेल करेगा ना सी को, जैसे कि ए ने बी को सेल किया कितने में, 121 में। तो ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी बता रहा हूँ, तो इसको टोटल सेल करेगा 132 में। तो इसमें देखो दो चीज़ पता चलेगा तुमको, एक तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है क्योंकि देखो इसका सेलिंग प्राइस 120 है, इसमें 11 ऐड नहीं है, जिसके ऊपर हम लोग को ओल्ड टैक्स में टैक्स देना पड़ता था। ओल्ड टैक्स में ऐसा नहीं होता था कि तुमने इसको एक्सक्लूड जीएसटी सेल करना पड़ता था। एक ओल्ड टैक्स में क्या होता था, मान लो 110 और टैक्स लगा तुमको 11, तो यहाँ पर होता कि कितना है 121। तो जीएसटी में क्या होता है, इसको जस्ट प्रॉफिट से ऐड करके सेल करते थे, मगर ओल्ड टैक्स में इसका कॉस्ट हो जाता था 121, क्योंकि 11 का क्रेडिट नहीं मिलता था तुमको, मतलब जो तुम पे किया था उसको तुमको टैक्स का रिफंड नहीं मिलता था। तो इसलिए देखो इस 121 में फिर 10% का टैक्स ऐड होता था, ठीक है। तो अब जो न्यू टैक्स होता था तब क्या होता था, 12.1 टैक्स होता था, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता था 133.1 था, मगर यही चीज़ जीएसटी में देखो इसमें 132 हो रहा है। मतलब टोटल सेव कितने का हो रहा है, 1.1 का सेव हो रहा है टोटल, देखो सेव 1.1। और नेट टैक्स का लायबिलिटी देखो 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें प्रॉफिट ऐड हो रहा है 10 का, प्लस 10 का प्रॉफिट ऐड किया। तो देखो तुम अगर नेट में मतलब अगर तुम नेट में देखोगे ना, सिर्फ देखो वो जो एडिशनल जो प्रॉफिट ऐड हुआ था 10 का, उसका 10% यहाँ पर लग रहा है। मतलब द टैक्स इज चार्ज ऑन द वैल्यू एडेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज द एंटायर चेन ऑफ द जीएसटी। मगर जो फाइनल कस्टमर है ना, उसका जो फाइनल कॉस्ट लगेगा वो कितना लगेगा पता है क्या, इसमें 10% ऐड करो, क्योंकि सी डी को सेल करता था 130 में, 10 रुपया चार्ज किया, तो इसका 10% कितना होगा, 13 होगा, तो 143। इट इज़ द टोटल कॉस्ट टू डी, टोटल कॉस्ट टू डी। क्यों पता है क्या, क्योंकि डी को ये फर्दर कहीं पर सेल नहीं करना पड़ेगा। मान लो डी इज वी आर द फाइनल कंज्यूमर, तो हम किसको सेल करें, वी कंज्यूम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कैन यू अंडरस्टैंड दैट वी कंज्यूम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, that 130 plus 13 143, so we don't received any credit,
हम लोग क्या जब कोई चीज़ परचेज करते हैं उसको जो जीएसटी चार्ज होता है हम रिटर्न भरते हैं क्या? नहीं भरते ना। तो अल्टीमेटली आवर टोटल कॉस्ट इज 143। एक क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ, मैं जो यहाँ पर तुमको दिखा रहा हूँ ना 110 प्लस 10, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। तो ये 110 बी को टोटल बिल में नहीं दिखेगा क्योंकि 110 है, क्योंकि ये जो बी को सेल करेगा ना उसमें जीएसटी इंक्लूड कर देगा, मगर बी को उस जीएसटी का मतलब क्रेडिट मिल जा रहा है, इसलिए उसका टोटल जो कॉस्ट है वो 110 ही है। जो टैक्स अमाउंट है उसको ये नहीं पकड़ेगा। ये है मतलब जीएसटी का मेन फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखो ओल्ड टैक्स में ये नहीं होता था। ओल्ड टैक्स में तुमको ये 11 का क्रेडिट उतना एडजस्ट नहीं होता था, तो इसलिए इट इज इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट। अच्छा, हम लोग कॉस्ट में क्या इंक्लूड करते हैं? इन कॉस्ट वी इंक्लूडेड, अच्छा तुमको एक बार कॉस्ट क्या होता है वो समझाता हूँ। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट के क्या होता है कि ऑल दी एक्सपेंसेस होता है माइनस ऑल रिफंडेबल एक्सपेंसेस। ये तो मोटा मोटी में कॉस्ट का मतलब ये तो होता है ना, ऑल दी एक्सपेंसेस माइनस ऑल रिफंडेबल एक्सपेंसेस। जो जिसका रिफंड मिल जाता है वो तो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है ना। तो इसमें देखो जो जीएसटी में ये जो टैक्स तुमने पे कर रहा हो ना, ये देखो 110 के 11, यहाँ पर 11, इसमें देखो ये 12, देखो सी का भी देखो एक ही आएगा। देख कैसे, देख पता है क्या? ये देखो इसका 13 को ये तो सी को पे करेगा ना, तो देखो सी जब रिटर्न भरेगा तो ये क्या दिखाएगा? मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना है। आउटपुट इसमें कहाँ लिखूँ? अच्छा इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ सी का। देखो सी क्या दिखाएगा रिटर्न में? मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना है? 13 का। क्योंकि देखो डी ने सी को 13 दिया है ना, तो सी का जिम्मा है कि वो 13 वो गवर्नमेंट को जमा कर दे। तो इसका लाइबिलिटी कितना होगा? 13 को। मतलब अब देखो जब सी ने बी से परचेस किया था ना, उसने ऑलरेडी वो 12 का टैक्स पे कर चुका है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास 12 का टैक्स ऑलरेडी जमा है। तो सी के हिसाब से तो ये आईटीसी कितना होगा? 12 होगा ना। तो नेट टैक्स सी को कितना पे करना पड़ेगा? इन कैश सी को पे करना पड़ेगा 1। पहले अल्टीमेटली व्हाट इज दैट 1? दैट 1 रिप्रेजेंट नथिंग बट द 10% ऑफ 10। व्हाट इज 10? 10 इज एडिशनल प्रॉफिट which is added by B, which is added by B जब सेल किया था, at the time of sale, at the time of sale। ये है ना, और तो कुछ नहीं है ना। देखो समझ में आया क्या? ओल्ड टैक्स में ये था, ये ओल्ड टैक्स का था, ये पूरा न्यू टैक्स का है। इट इज़ द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी। जो इंटरमीडिएट में हाथ में जाता है उसका कॉस्ट होता है सिर्फ वो प्रोडक्ट का कॉस्ट, जीएसटी का कॉस्ट उसमें ऐड नहीं होता। क्यों नहीं ऐड होता? क्योंकि उस टैक्स का उन लोगों के पास रिफंड आ जाता है। तो जो कॉस्ट का मतलब पता है हम लोगों को, ऑल द एक्सपेंसेस लेस ऑल द रिफंडेबल एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हम लोगों को रिफंड मिल जाता है उसको हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। इट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। And but here you also notice that in old tax regime that 11 is not refunded. That's why it is included. And if you notice that here the cost is 133.1 in old tax regime, but in 130 in new tax regime the same is cost as 132. तो इसमें सेव होता है ना, इसका मतलब GST is also save our money. It reduce the cost. It avoiding the cascading effect of cost. Cascading effect means tax on tax. यहाँ पर जो हो रहा है ये कैसे आया? ये 133.1 कैसे आया? तुम अगर नोटिस करोगे इसमें टैक्स कितना है? 12.1। तो 121 टैक्स है। तो ये टैक्स कैसे आया पता है क्या? ये टैक्स ऐसे आया कि तुम अगर इसको बाइफर्केशन कर दो तो इसका 10% कितना आएगा? 11। इसका 10% आएगा 1.1। तो देखो इसको टोटल करोगे ना तो ये आएगा। इसका मतलब ये जो 1.1 है ना वो तो टैक्स ऑन टैक्स है ना, टैक्स ऑन टैक्स है।
तो इसको इसमें तो कोई वैल्यू एडेड ही नहीं हो रहा है ना, टैक्स ऑन टैक्स है। तो ये समझ में आया, टैक्स ऑन टैक्स है, इसलिए वोल्ड टैक्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था और गुड्स का दाम इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, इट इज़ द बेसिक, मतलब ये बेस है एकदम। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आया तो वेट करना, ये और भी डिटेल्स में आएगा। ठीक है, तो इट इज़ द टोटल, आई मीन गिव अ ब्रॉड व्यू ऑफ जीएसटी। आईटीसी क्या होता है, वैल्यू एडेड क्या होता है, ईच, और एक चीज़, ईच टाइम यहाँ पर जब सेल कर रहे हो ना, देखो टैक्स ऐड हो रहा है, ईच टाइम ऑफ सेल यू चार्जिंग द जीएसटी, बट इट इज़ अदर मैटर दैट यू गॉट अ क्रेडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो इट इज़ द जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, चेन ऑफ ए टैक्स क्रेडिट दिख रहा है हम लोगों को, चेन ऑफ ए टैक्स क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, बर्डन ऑन ए फाइनल कंज्यूमर, ये भी दिख रहा है, यहाँ पर फाइनल कंज्यूमर डी है, क्योंकि डी को किसी को ट्रांसफर ही नहीं करना है तो उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो डी, फाइनल कंज्यूमर मतलब हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को तो टैक्स जो हम लोग पे किया है उसका क्रेडिट तो नहीं मिलता ना, अल्टीमेटली इट इज आवर कैश, इट इज नॉट रिफंडेबल, सो इट इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी है। और नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, कास्केडिंग इफेक्ट मैंने टैक्स ऑन टैक्स समझाया था। देखो ओल्ड टैक्स में ये था, ये वाला 1.1, देखो टैक्स इसमें लग रहा है, मगर इसमें देखो जो कॉस्ट है एक्चुअली 120 है, सिर्फ 10 रुपया प्रॉफिट ऐड करके ए ने बी को सेल कर दिया था, बस, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट है टोटल 120 का। ठीक है, तो ये है इंटायर थिंग्स। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो पॉज करके। ठीक है, चलो कुछ और चीज़ देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट जीएसटी किस में चार्ज नहीं होता। ठीक है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये जीएसटी मतलब किस में चार्ज नहीं होता, एज वेल एज कौन कौन सा टैक्स अभी भी है। ठीक है, तो द टैक्स which is available till now is, first is electricity duty, property tax, stamp duty। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट है, देखो इसमें बेसिक कस्टम, अच्छा और एक चीज़, बेसिक कस्टम तो है ही, कस्टम तो नहीं हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी इज बेसिकली द टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई आई was mentioned that in GST definition that the GST is charged in every goods and services, but excluding on the alcoholic liquor for human consumption and another is for immovable property। ठीक है, मैं इसलिए बताया था क्योंकि देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से टैक्स दिया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा अब कुछ प्रोडक्ट है, अच्छा नीचे अल्कोहल भी है, देखा है क्या, ये देखो अल्कोहल भी है। ठीक है, तो इसमें अब कुछ प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, अब हम लोग ये मतलब याद कैसे रखें कि ये सब प्रोडक्ट में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। देखो तुम अगर ये याद रखोगे, एक सेंटेंस है प्लीज चेंज डीएनए, तो तुम इसको याद कर सकोगे कैसे, देखो। ठीक है, 5 होगा टोटल प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 है। ये प्लीज का मतलब है पेट्रोलियम एंड चेंज का मतलब है क्रूड, डी इज डीजल, एन इज ए नेचुरल गैस एंड ए इज ए एविएशन टरबाइन फ्यूल। अच्छा, प्लीज चेंज डीएनए, इसका मतलब है देखो फॉर ए फन पर्पस। ठीक है, कुछ एनी मतलब और तरफ से मत लेना। देखो टैक्स चोरी करना इंडिया में मतलब क्या बोलूँ, मतलब किसी मेजॉरिटी ऑफ अस trying to reduce our tax by taking a loophole of in a tax law। ठीक है, मतलब loophole फाइंड करके हम लोग मतलब इसमें ही रहता है कि कैसे टैक्स कम करें, तो इसलिए द चोरी ऑफ टैक्स इज इन आवर डीएनए, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड प्लीज चेंज डीएनए। ठीक है, जस्ट फॉर रिमेंबर पर्पस। ठीक है, कुछ और तरफ से मतलब मगर हम लोगों को चाहिए व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। तो देखो हर जगह पर ये व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज कॉमन, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विसेज होता क्या है। ठीक है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कमिंग इनटू द व्हाट इज गुड्स। अच्छा, सेक्शन है 2, सबसेक्शन यह रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। ठीक है,
मगर मेन सेक्शन है 2 एंड ऑल द डेफिनेशंस आर गिवन इन दैट सेक्शन 2, ठीक है। जीएसटी में जितना भी डेफिनेशन है ना वो सब 2 में दिया हुआ रहता है, सेक्शन 2। तो तुम यूज़ कर सकते हो कि एज पर सेक्शन 2, सब सेक्शन मत देना, ठीक है। तो गुड्स में क्या होता है कि एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, देखो मूवेबल में मैंने हाईलाइट करके रखा है क्योंकि देखो ई मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, ठीक है। तो एक ही चीज़ के ऊपर तो 2 टैक्स नहीं दे सकते ना, तो इसलिए ऑल द मूवेबल प्रॉपर्टी एक्शनेबल क्लेम दैट इज ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड डेट, इंश्योरेंस डेट, ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब जो एग्रीकल्चर में होता है वो भी गुड्स है, ठीक है। तो ये ऑल द थिंग्स इज गुड्स, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये है गुड्स का डेफिनेशन। एक्सक्लूडेड मनी एंड सिक्योरिटी। मनी का मतलब जो कैश होता है और सिक्योरिटी का मतलब जो बॉन्ड होता है, म्यूचुअल फंड होता है, राइट ऑफ इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, जो जो होता है सिक्योरिटी होता है उसमें वो गुड्स नहीं है, मगर उसमें जो सर्विस हम उसको यूज करके देते हैं ना उसमें जीएसटी लगता है, ठीक है। वो कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ। ये देखो, पहले देखो जीएसटी का डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज अ सर्विस का डेफिनेशन देखो, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विसेज। दैट मीन्स दैट गुड्स इज ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, एंड सर्विसेज इज अदर देन द गुड्स। अच्छा, इस इन दोनों में एक्सक्लूड क्या है? एक्सक्लूड है मनी एंड सिक्योरिटी। बट using of that money and security, if we giving any services to any person and charging the money separately, then it is included in the services. कैसे होता है? मान लो तुम्हारे पास you have a dollar, ठीक है, and you need to converting the dollar into the Indian currency. So you are going to the currency exchange office, तो वो exchange करके देगा, मगर उसके साथ तुमसे कुछ चार्ज भी लेगा। They are charging some of the money due to the conversion of that currency. तो तुमको सिर्फ वो करेंसी का जो एक्सचेंज हुआ उस दैट इज नॉट अ गुड्स एंड दैट इज नॉट अ सर्विसेज, बट द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग बाय कन्वर्टिंग दैट करेंसी, दे आर चार्जिंग फॉर दैट मनी फॉर देयर ओनली सर्विसेज, ठीक है। वो जो सर्विस के लिए जो मनी चार्ज कर रहा है उसको वो जीएसटी में इंक्लूड होगा और उसमें जीएसटी चार्ज भी होगा। तो इसका मतलब मनी इज नॉट अ गुड्स, नॉट अ सर्विसेज, but using that money, if you are providing any services and charge the money, ठीक है, चार्ज कर रहे हो मनी, अगर मनी चार्ज नहीं कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो अगर चार्ज कर रहे हो ना तो ही सर्विस होगा। और सिक्योरिटी के लिए भी सेम है। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो कन्वर्टेड टू फॉर ए कंसिडरेशन। अच्छा, सिक्योरिटी में भी है। मान लो जब तुम कोई फिक्स डिपॉजिट करते हो और कुछ और चीज़ करते हो तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी देते हो ना, तो बैंक ना तुम्हें तो मतलब सब बैंक नहीं चार्ज करते मगर करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस करके वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो जो सर्विस होता है ना वो टैक्सेबल है। सिक्योरिटी इज नॉट अ टैक्सेबल, नॉट अ गुड्स एंड नॉट अ सर्विसेज, एंड इफ इट इज नॉट अ गुड्स देन इट इज नॉट टैक्सेबल। बट using of that security, and if you charge any specific money for document verification or any other charges, then it is under the purview of GST and it is a service and charging the tax, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी मतलब if you are noticed in a share trading that the brokerage some money is charged also as a brokerage, तो वो जो ब्रोकरेज का जो चार्ज होता है वो भी जीएसटी के अंदर आता है। तो जो शेयर होता है वो तो गुड्स भी नहीं है, सर्विस नहीं है, मगर बाय यूजिंग दैट शेयर यू गिविंग अ पर्टिकुलर सर्विस, एंड फॉर दैट सर्विस द ब्रोकरेज और द ब्रोकरेज इज चार्ज बाय डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म, और जो ब्रोकर होता है, डिस्काउंट ब्रोकर जो होता है, तो वो चार्ज करता है, तो वो जीएसटी के सर्विस के अंदर आता है। तो द मेजर थिंग इज दैट गुड्स इज इंक्लूडिंग ऑल द काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विस इज अदर देन द गुड्स। दोनों में ही मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आता, मगर इफ वी पे एनी मनी फॉर you any charge, if the any company charging anything due to the by using that money and securities, then it is coming under the purview of GST, ठीक है। it is the definition of goods and service
तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अब हम आते हैं द फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि देखो, जीएसटी में मैंने बताया था कि इट इज़ अ डुअल कंसेप्ट। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट होता है। तो डुअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? देयर इज अ टू पार्टी, वन इज ए सेंट्रल, वन इज ए स्टेट एंगेजिंग इन द जीएसटी। अब दोनों को टैक्स अलग अलग होता है। फोर टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर द जीएसटी। वन इज IGST, दैट इज द इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट मतलब ही वो होता है कि जब आउट ऑफ द स्टेट, उसका मतलब है इंटरस्टेट। अनदर इज SGST, अनदर इज CGST एंड अनदर इज UTGST। UTGST का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, तो एंड ये सब अप्लाई होता है इंट्रास्टेट सेल में। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट। अब इन दोनों का सेक्शन है, वन इज अ सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, अनदर इज अ सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट। एंड प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू रिमेंबर द सेक्शन। ठीक है, ये लगेगा, नीचे आ जाओ। ये देखो, इंटरस्टेट सप्लाई जो होता है ना, इंटरस्टेट ट्रांसफर जो होता है ना, मतलब क्या होता है कि मान लो तुम वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो तुम महाराष्ट्र में कुछ सप्लाई करते हो, तो दो सेपरेट स्टेट है। तो उस केस में हम लोग जो जीएसटी का चार्ज करते, जीएसटी का जो रेट होता है ना, उसको हम इंटरस्टेट रेट बोलते हैं। ठीक है, IGST जो बोलते हैं। और जो विद इन द स्टेट होता है, अच्छा ये दो स्टेट में देखो तीन चीज कवर है। वन इज टू डिफरेंट यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी कहते हैं। तो उसको वो अब अगर हम मान लो एक यूनियन टेरिटरी से अनदर यूनियन टेरिटरी में अगर कुछ सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो टैक्स चार्ज होता है उसको भी इंटरस्टेट ही चार्ज होता है, मतलब IGST भी चार्ज होता है। तब पर उसके बाद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब अगर स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कुछ अगर चार्ज होता है, तो जाता है, गुड्स जाता है, तो उसमें भी जो टैक्स चार्ज होता है उसमें भी इंटरेस्ट रेट है। मतलब आउट ऑफ द स्टेट अगर कुछ चार्ज होता है उसको हम इंटरेस्टेड बताते हैं, ट्रांसफ़र बताते हैं। और व्हाट इज इंटरेस्टेड ट्रांसफ़र? इंटरेस्टेड ट्रांसफ़र क्या होता है कि विद इन द स्टेट जो गुड्स हम लोग सर्विस सप्लाई करते हैं ना, उसको हम इंटरेस्टेड ट्रांसफ़र बोलते हैं। मान देखो, ये जो CGST है ना, सेंट्रल, ये CGST सेंट्रल का पार्ट होता है, मतलब ये सेंट्रल को जाता है। और SGST एंड UTGST ये एक ही है। अगर किसी स्टेट को होता है तो उसमें हम CGST एंड SGST लगाते हैं, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी को सप्लाई करते हैं तो उसमें UTGST लगाते हैं। मतलब CGST UTGST, CGST SGST, तो ये दो स्टेट को जाता है, मतलब इक्वल जाता है। अगर मान लो 10% टैक्स है, मान लो GST का रेट है 10%, तो इसमें 10% टोटल IGST चार्ज हो जाएगा एज ए इट इज़। और इसमें जो CGST है, इसमें क्या होता है, 5% इसमें जाता है और 5% ये जाता है, मतलब 5% सेंट्रल को जाता है एंड SGST सेंट्रल स्टेट को जाता है। इसका फुल फॉर्म भी यही ना, देखो ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और अब बस और कुछ तो अभी इंट्रोडक्शन में करने का दरकार तो नहीं है। अच्छा ये देखो, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, सप्लाई प्राइस क्या होता है 300, IGST देखो चार्ज हुआ 54 का, टोटल प्राइस है कितना 354 का, देखा। और इसमें कैसे चार्ज होता है, CGST देखो 9% एंड SGST देखो 9%, अलग अलग चार्ज हो रहा है, ये देखो। तो गुजरात से महाराष्ट्र दूसरा स्टेट है, तो इसमें सेक्शन 7 के IGST लगेगा, इंटरस्टेट सप्लाई, एंड ये सेक्शन 8 लगेगा इसमें। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर थिंग्स। बस नेक्स्ट डे हम लोग सप्लाई करेंगे एंड दूसरों को भी सीखने का मौका दो, और लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो, बाय गाइस।